Good morning, students. Welcome back. Now, this is our next topic for the bio life processes chapter for the class 10th is lymphatic system. A system of tiny tubes called lymph vessels and lymph nodes. Vessels and nodes combine to form a lymphatic system, and it is present in the human body, which transport the liquid called lymph from the body tissue to the blood circulatory system is called lymphatic system. Lymphatic system consists of following parts. What are different parts? First is lymph capillaries. Next is lymph vessels. Then lymph nodes, right? So lymph capillaries and tiny tubes, they are such tiny tubes. These are capillaries का मतलब होता है बहुत ही बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. जैसे कि एक हो गया आर्टरीज हो गया एंड अनदर वन इज वेन्स. Capillaries are totally different from arteries and veins, as capillaries are the tiny tubes combining both of the arteries and veins, and they are present in the whole body, right, and differ from the blood capillaries. And along with that, what is lymph? Lymph exactly means a light yellow colored liquid. Light yellow colored liquid, and it is somewhat similar in composition to blood plasma. जो ये lymph होता है ये बहुत कुछ blood plasma के जैसा होता है, लेकिन जो lymph है it is not red in color. Lymph is not red in color, right? And like blood, जैसे कि blood red color का होता है तो lymph red color का नहीं होता. It does not contain RBCs. लिम्फ के पास आरबीसीज नहीं होते हैं. लिम्फ के पास क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है एंड डाइजेस्टेड फूड. It also contains germs from the cells and fragments of the dead cell. So we can say at the end कि lymph is another medium in circulation of the human body. lymph एक ऐसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी की सर्कुलेशन के काम आता है कि जब हमारी बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स का प्रोटीन्स का सर्कुलेशन हो तो हम lymph की बात करते हैं, राइट? एंड in the lymph nodes, lymph is cleaned by white blood cells called lymphocytes. 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 This is known as white blood cells. You can see very well the diagram for the lymphocytes. ये देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं. Lymphocytes are the special type of white blood cells. In this, they have been stained with the dye. Actually, उनको dye से color कर दिया so that you can see them. And actually, what they are कि वाइट ब्लड सेल्स ईट द जर्म्स एंड डेड सेल्स. ये क्या करते हैं? लिम्फोसाइट जितना भी हमारी बॉडी में लिक्विड में आसपास जर्म्स है या डेड सेल्स हैं उन सबको ये खा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं. दे मेक एंटीबॉडीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज. ये बाहर से आने वाले डिजीजेज से हमें बचाते हैं, तो हम कह सकते हैं दे एक्ट एज अ सोल्जर्स फॉर आवर बॉडी. एंड दे ऑल्सो क्लीन्ड the lymph containing large protein molecules, digested fats and other material by lymph vessels. So at the end we can say the functions for the different functions of the lymphatic system is कि ये क्या करता है? It take part in the nutritive process of the body. It puts into circulation of the large protein molecules in the body. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के सर्कुलेशन के लिए काम आता है ये. फॉर कैरिंग देम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. lymph protect the body by killing the germs with the help of the WBC or with the help of the lymphocytes, right? And lymph also help in removing the waste product like fragments of the dead cells. Waste product, fragment of the dead cells out from the body. So the important part
of the lymph is to remove the waste out from the body. So the complete lymphatic system is somewhat related to the excretion. So this is our another topic of excretion. We are correlating the lymphatic system with the excretion part of the human beings as well as the plant. Even plant excrete. This is, you feel very strange to listen कि plant also excrete. So excretion is what? Excretion is the process of removal of toxic waste from the body. अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक है, कुछ पॉइजनस बना हुआ है ना, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस, राइट? और एक्सक्रीशन प्रोसेस प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, ठीक है? एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, हम जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स एक्सक्रीशन कैसे करता है, तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है, जैसे कि प्लांट CO2 भी रिलीज़ करता है, प्लांट वाटर वेपर भी रिलीज़ करता है, राइट? वो भी अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, प्लांट ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। तो ये सारे इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट की बॉडी से बाहर आते हैं। इनफैक्ट अगर ये पौधा लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ मिट्टी के आसपास भी वो कुछ रिमूव आउट करता है, अपनी कुछ लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालता है, विच इज़ नॉट विजिबल टू अस। तो दिस इज ऑल्सो द एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट, राइट? सो द प्लांट स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं कि प्लांट क्या रिमूव करते हैं, गम्स एंड रेजिन्स आउट फ्रॉम देयर बॉडी। लाइक कोई लीफ टूट गया, कोई फ्रूट राइपन होके गिर गया, या कोई पत्तों में विल्टिंग हो गई, या पत्ते सूख के गिर गए, तो ये सब क्या है, ये उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेटेड है, यानी कि उसकी बॉडी से वेस्ट मटीरियल बाहर गिर रहा है। सो प्लांट गेट रिड ऑफ गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। जो इनकी लीव्स में, पत्तियों में स्टोमेटा होता है, वहाँ से ये सारा वेस्ट बाहर निकालता है, राइट? प्लांट गेट रिड ऑफ द स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स। पत्ते गिराकर या अपनी छाल, जो बार्क है, ये वाली जो बार्क है, ट्री की बार्क के ऊपर की जो छाल है, उसको भी वो गिराकर ये भी शेड ऑफ हो जाती है एक समय में, वो भी वो वेस्ट निकलना कहते हैं, राइट? एंड प्लांट ऑल्सो गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सीक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स, ठीक है? ये जो गम्स हमें प्लांट देते हैं, ट्री देते हैं, रेजिन्स देते हैं, एडिसिव देते हैं, ये सब उसका वेस्ट की तरह माना जाता है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। सॉइल के अंदर, यहाँ रूट्स के पास, चारों तरफ भी कुछ वेस्ट वो निकालता है, वो भी एक्सक्रीशन कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हैं, एनिमल है, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारा वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग है, स्वेटिंग मीन्स पसीना आना, तो इट्स ऑल्सो अ वेस्ट आउट फ्रॉम आवर बॉडी। यूरिन इज वेस्ट out from our body. So in the same way, the plant is also removing the waste material in the form of gases, water vapors, gums, resins, etc. So here we finishes up with the lymphatic system, which is correlated with the excretion, and in our next video we will completely understand what excretion is. Thank you.